आदाब। सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हैदराबाद के बैरामलगुड़ा के सेकंड लेवल फ्लाईओवर का चीफ मिनिस्टर के हाथों इफ्तिताह। एलबी नगर खित्ते में ट्रैफिक के मसाइल को कम करने के मंसूबे पर काम जारी। तेलंगाना आरटीसी मुलाजिमीन के लिए खुशखबरी, हुकूमत ने पे रिवीजन का कर दिया ऐलान। याकूतपुरा में सदर मजलिस के हाथों मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज। शहरियों की सहूलत के मंसूबों को जारी रखने ओवैसी ने किया अज़्म। जनगांव में एक रोजा हज तरबियती कैंप का एहतमाम। जिले हज सोसाइटी ने सफर मुकद्दस पर जाने वालों को दिए मुफीद मशवरे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज बैरामलगुड़ा फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया है। 1 किलोमीटर से ज्यादा तवील ये अहम फ्लाईओवर हैदराबाद के बैरामलगुड़ा में 148 करोड़ रुपयों की लागत से तामीर किया गया। एलबी नगर मंसूबे में ये 14वां ढांचे का जिसका इफ्तिताह हुआ है और तर्जे तामीर के लिहाज से मुल्क में ये अपनी नौयत का पहला फ्लाईओवर है। इस फ्लाईओवर से ओवैसी अस्पताल जंक्शन तक ट्रैफिक के मसाइल कम होने की उम्मीद है। హైదరాబాద్ నగరంలో పెరుగుతున్న జనాభా వివిధ ప్రాంతాల నుంచి హైదరాబాద్కు వస్తున్న జనాభాను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఫ్లైఓవర్లే కాకుండా రోడ్ల విస్తరణే కాకుండా హైదరాబాద్ నగరానికి కృష్ణా నది జలాలు గోదావరి జలాలే కాకుండా పేద ప్రజలకు ఉపయోగపడే విధంగా మెట్రో రైలును తీర్చిదిద్దాల్సిన బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద ఉన్నది। మరి ముఖ్యంగా ఉప్పల్, నాగోల్, ఎల్బీ నగర్, హయత్ నగర్, ఓవైసీ హాస్పిటల్ నుంచి చంద్రాయన్ గుట్ట, అక్కడి నుంచి అంతర్జాతీయ ఎయిర్పోర్ట్ వరకు మెట్రో రైలు నిర్మించాల్సిన బాధ్యత మా ప్రభుత్వం మీద ఉన్నది। అందుకే ఈరోజు నగరంలో పేదలు అత్యధిక జనాభా ఉన్న ప్రాంతంలో మెట్రో రైలు నిర్మించాలని, గతంలో మెట్రో రైలు నిర్మించింది కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు, ఈనాడు ఫేజ్ 2 మెట్రో రైలు కూడా నిర్మించాలని నాగోల్ నుంచి ఎల్బీ నగర్ నుంచి ఓవైసీ హాస్పిటల్ నుంచి చాంద్రాయన్ గుట్ట నుంచి మైలార్దేవరపల్లి, అక్కడి నుంచి అంతర్జాతీయ ఎయిర్పోర్ట్ కు మెట్రో రైలు ప్రతిపాదనలని మనం పనులు మొదలు పెట్టుకుంటున్నాం। అదే విధంగా ఎల్బీ నగర్ నుంచి హయత్ నగర్ వరకు మెట్రో రైలు మనం పొడిగించాలనుకుంటున్నాం। అదే విధంగా బిహెచ్ఎల్ వైపు మియాపూర్ నుంచి బిహెచ్ఎల్ రామచంద్రాపురం వైపు మనం మెట్రో రైళ్లు పొడిగించాలని ఇవాళ నిర్ణయం తీసుకున్నాం। ఇవాళ చాంద్రాయన్ గుట్ట నుంచి రాజేంద్ర నగర్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ దగ్గర హైకోర్టు కాంప్లెక్స్ ను 100 ఎకరాలలో నిర్మిస్తున్నాం। అక్కడి కూడా పేదలకు రవాణా సౌకర్యం కల్పించాలని మెట్రో రైలును అక్కడి కూడా పొడిగించడం జరిగింది। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने आज आरटीसी इंतजामिया के हुक्काम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के क़याम के 48 घंटे के अंदर आरटीसी ने खवातीन को मुफ्त बस की सहूलत फराहम की। इन्होंने हुकूमत की जानिब से आरटीसी को मुबारकबाद पेश की और बकाया जात की अदायगी का भी ऐलान किया। इन्होंने आरटीसी मुलाजिमीन को फवायद पहुंचाने की बात कही और कहा कि आरटीसी अब मुनाफा बख्श इदारा बनता जा रहा है और नए रूट्स पर बस सर्विस शुरू करने का भी इशारा दिया। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ने 1 जून से टीएसआरटीसी मुलाजिमीन को 21% पे रिवीजन पर नजरसानी करने का ऐलान किया। पूनम ने बताया कि आरटीसी मुलाजिमीन की तनख्वाह के बिल में 418 करोड़ सालाना का इजाफा होगा। कहा कि बीआरएस हुकूमत ने 2017 के बाद उजरतों पर नजरसानी नहीं की। మహాలక్ష్మి వారితో కలకలలాడుతూ ఉన్నాయి। ఒక ఇంట్లో గలగలాడి ఉండేటువంటి పద్ధతులలో మరి కార్యక్రమం ఉన్నటువంటి బస్ స్టాండ్లు కావచ్చు, బస్ స్టేషన్లు కావచ్చు, అక్కడ పడేటువంటి అనేకమైనటువంటి విధంగా సౌకర్యాలను మెరుగుపరిచే భారం కూడా పడుతున్నప్పటికీ కూడా ఎక్కడ ఎన్నుకోకుండా చేస్తాను। రిక్రూట్మెంట్ తో పాటు పని భారాన్ని, ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి అవసరమైన స్ట్రీమ్ లైన్ ఎటువంటి చర్యలు చేపట్టాలో నూతన ఉద్యోగ నియామకాలకు సంబంధించి కూడా రాజు గారు కూడా, సజ్జనార్ ఎండి గారు కూడా, మేమందరం కూడా సానుకూలంగా ఆర్టీసీలకు సంబంధించి కొంచెం
ఒక పద్ధతి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ పద్ధతిలో కూడా డిబేట్ కావచ్చు అనేటువంటి ఆలోచనతో ఉన్నవాళ్ళం కాబట్టి ఈ సంస్థను ముందుకు తీసుకుపోయే దాంట్లో కూడా అందరి భాగస్వామ్యం కోరుతాను. ఈ యొక్క ఫిట్మెంట్ 16% నుంచి 21% ఇచ్చినందుకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి, అదేవిధంగా గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి బట్టి విక్రమార్క రేవంత్ రెడ్డి గారికి, బట్టి విక్రమార్క గారికి ఆర్టీసీ సంస్థ తరఫున అందరి పక్షాన హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు చేస్తాను. हैदराबाद के रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज अपने पार्लिमानी हलके में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने हैदराबाद के बलदी हलके तालाब, चिंचलम, पत्थरगट्टी, मुगलपुरा डिवीजन और दीगर मुकामात पर इफ्तिताही प्रोग्राम्स में शिरकत की और लगभग 3 करोड़ की लागत के मनसूबों की शुरुआत की। इस मौके पर इन्होंने बताया कि इस इलाके में तरक्याती कामों के लिए 14 करोड़ रुपये मंजूर करवाए गए हैं। याकूतपुरा हलके से मजलिस के एमएलए जाफर हुसैन मिराज भी इसी दौरान बैरिस्टर ओवैसी के हमराह मौजूद थे। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से 9 मार्च 2024 मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से हल्क़े असम्बली याकूतपुरा पार्लिमानी हल्क़ा हैदराबाद में बल्दी हल्क़े चिंचलम, बल्दी हल्क़े पत्थरगट्टी और बल्दी हल्क़े मुगलपुरा में 32 नए कामों का इफ्तिताह हुआ। उसकी लागत है 3 करोड़, जिसमें 12 काम नए वाटर लाइन डालने के हैं और 12 सीवरेज लाइन के हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो 14 करोड़ के सीवरेज लाइन के जो काम हम मंजूर करवाए थे, उसमें से आज इन कामों का इफ्तिताह हो रहा है। मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जो 20 पानी की लाइन के काम का आज इफ्तिताह किया गया, वो पानी के पाइप्स जो है इंशाल्लाह 22 मार्च के दिन आने वाले हैं और 22 मार्च के बाद वाटर लाइन का काम शुरू हो जाएगा। जो ड्रेनेज और सीवरेज पाइपलाइन का काम है वो उसके पाइप्स आ गए हैं, मटेरियल है, उसका काम जल्द से शुरू किया जाएगा। और कल इतवार के दिन सुबह में 1 करोड़ 35 लाख की लागत से ड्रेनेज और वाटर वर्क्स के कामों का इफ्तिताह याकूतपुरा असम्बली हलक़े में बल्दी हलक़े कुरमागुड़ा, डबीलपुरा और रैन बाज़ार, संतोष नगर में इन कामों का इफ्तिताह किया जाएगा। और वही पानी की लाइन का काम 22 मार्च के बाद ही शुरू होगा। हमारी कोशिश यही है कि हैदराबाद पार्लिमानी हलक़े में जितने असम्बली हलक़े जहाँ आते हैं, जितने बल्दी वार्ड हैं, वहाँ पर हनमकुंडा सूबेदारी अदालत सेंटर में वाक़ मस्जिद खुर्द की तामीर जदीद के बाद मस्जिद खुर्द का इफ्तिताह अमल में आया। इस तकरीब में रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अज़मतुल्लाह हुसैनी मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। एडिटर रोजनामा सियासत आमिर अली खान को भी मदऊ किया गया था। एमएलए हनमकुंडा नायनी राजेंद्र रेड्डी भी खुसूसी तौर पर शरीक रहे। रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि मस्जिद की तामीर व तजदीद बहुत अच्छा काम है, लेकिन इसके साथ साथ इन मस्जिदों को भी आबाद करना बहुत ज़रूरी है। वरंगल वेस्ट से रुकने असम्बली नायनी राजेंद्र रेड्डी ने कहा कि मैं यहाँ आकर अपने आप को काफ़ी पुरसुकून महसूस कर रहा हूँ और हम तमाम मिलकर आपस में एक दूसरे की तकरीबात में शिरकत करके एक दूसरे में खुशियाँ तकसीम करेंगे। इस प्रोग्राम में जलालुद्दीन अकबर, रिटायर्ड चीफ कंजर्वेटिव ख्वाजा मोहिउद्दीन, मुफ्ती उमर आबिदीन, हाफिज पीर खलीक अहमद साबिर, मौलाना हारून रशीद, मौलाना अब्दुल सत्तार कासमी, मौलाना फसीउद्दीन, मौलाना अतीकुर रहमान ने शिरकत की। आज मस्जिद खुर्द छोटी मस्जिद के नाम से जानी जाती है। आमिर 9 के बाद फिर वापस आज मस्जिद का इफ्तिताह अमल में आया। मस्जिद के मैं सबसे पहले मस्जिद के जिम्मेदारान, मस्जिद के कमेटी का मैं मस्जिद कमेटी को बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देता हूँ। और इस मस्जिद के तामीर 9 में जिन लोगों की काविशें रहे, जिन लोगों की मेहनत रहे, जिन लोगों का ताउन रहा, उन तमाम लोगों का मैं वक्फ बोर्ड की जानिब से, इस मस्जिद कमेटी की जानिब से उनका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आने वाले दिनों में माह सियाम का शुरुआत है। वक्फ बोर्ड की जानिब से हम ऐसे मसाजिदों की तामीर में, कब्रस्तानों की हिफाजत और उनकी सारबंदी के लिए और मस्जिदों को आबाद करने में वक्फ बोर्ड का जो भी ताउन रहेगा हम ताउन करेंगे ज्यादा से, क्योंकि मेरा वरंगल से बहुत पुराना ताल्लुक है। तो वरंगल का मैं बहुत सालों से यहाँ पे वरंगल में मैं काम कर रहा हूँ सियासी तौर पर, इसलिए यहाँ के बहुत सारे मसाइल मैं जानता हूँ। तो जैसे जैसे अब बहुत सारे कमेटी के हजरात भी मेरे से मुलाकात की है, तमाम मसाइल को आहिस्ता आहिस्ता पिछले 10 साल से जिस तरीके से मसाजिदें और काफी जायदादें कब्रस्तानों को नजरअंदाज किया गया, तो वापस उसको हम लेने की
हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कामारेड्डी के सरकारी दवाखाने में मुख्तलिफ सहूलियात का इफ्तिताह किया। यहाँ मेडिकल, सर्जिकल, पोस्ट ऑपरेटिव और डायलिसिस वार्ड्स का इफ्तिताह हुआ। कामारेड्डी में आज से इस दवाखाने में इजाफी 100 बिस्तर के वार्ड्स खोले गए हैं। कामारेड्डी में आज मजीद 5 डायलिसिस बेड्स का भी इफ्तिताह किया गया। शब्बीर अली ने मरीजों की सहूलत के लिए जल्द ही कामारेड्डी के दवाखाने में लिफ्ट का इंतजाम करने की बात कही। इन्होंने मजीद बताया कि कामारेड्डी में मेडिकल कॉलेज की तामीर का काम भी तेजी से मुकम्मल किया जाएगा। इस मौके पर शब्बीर अली ने खिताब में कहा कि कांग्रेस हुकूमत तालीम, सेहत और ज़राअत पर खुसूसी तवज्जो देकर आगे बढ़ेगी। 100 బెడెడ్ హాస్పిటల్ 93లో శాంక్షన్ అయింది, 94లో కంప్లీట్ అయింది. 100 బెడెడ్, దాని తర్వాత 80 బెడ్ అయింది. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ వచ్చిన తర్వాత అదనపు 150 బెడ్స్ కలిపి 330 హాస్పిటల్స్ బెడ్స్ ఉండాలా యాజ్ పర్ ది నామ్స్ ఆఫ్ మెడికల్ కాలేజ్. దాని సందర్భంలో ఈ 330 బెడ్స్ అయిపోయినాయి. 180 ఓల్డ్ అండ్ న్యూ 150లో 100 ఫిమేల్, 100 మేల్, తర్వాత చిల్డ్రన్స్ అలగ్ అలగ్ సపరేట్గా వాళ్ళు సపరేట్ నోట్ ఇచ్చేయండి మీరు. ఇప్పటికీ 5 ఉండే, ఇంకా కొత్త 4 डायलिसिस सेंटर्स కూడా 4 बेड्स ओपनिंग किए। आज़मीन हज के लिए जनगांव में एक रोज़ा हज तरबियती कैंप मुनक़िद किया गया। ज़िले हज सोसाइटी के कन्वीनर मुज्तहिदुद्दीन और सादिक फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम सफ़र मुक़द्दस पर रवाना होने वालों के लिए एक ज़िला हेडक्वार्टर में ये प्रोग्राम रखा गया था। मास्टर ट्रेनर मज़हर कासमी ने बताया कि आज़मीन को उमूर हज की मुकम्मल जानकारी दी गई। मुत्तहिदा वरंगल ज़िले के आज़मीन हज के लिए एक दिन का हज का तरबियती प्रोग्राम रखा गया, जिसमें बहुत से हुज्जाज कराम ने शिरकत की और हज सोसाइटी के ज़िम्मेदारान ने पूरी दिलचस्पी, दिलजमई और तमदही के साथ आज़मीन हज के इस प्रोग्राम के इनेकाद के लिए इंतज़ामात किए और बहुत बड़े पैमाने पर बहुत अच्छे अंदाज में हाजियों का ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ और तमाम हाजियों ने सुबह से 4 बजे तक इत्मीनान और सब्र और सुकून के साथ इस हज तरबियती कैंप को अटेंड किया और बहुत कामयाबी के साथ ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। हमारी दुआ है अल्लाह ताला तमाम आज़मीन हज को हज मकबूल मबरूर नसीब फरमाए और हज सोसाइटी के जो ज़िम्मेदारान हैं और उनके जो मुआविनीन हैं, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों में बरकत पैदा फरमाए और सबको अपने घर की मकबूल हाज़री। मदरसे इस्लामिया रियाजुल उलूम व रियाज इस्लामिक स्कूल वाक़ई मुस्तफ़ा नगर फलकनुमा हैदराबाद में रियासत तेलंगाना के वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी की तहनीती तकरीब मुनक़िद हुई, जिसकी सदारत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी हुस्सामी बानी मदरसे ने अंजाम दी और मेहमान खुसूसी की हैसियत से जनाब पीर इरशाद अहमद नासिर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी कन्वीनर ने शिरकत की। वक्फ बोर्ड चेयरमैन अज़मतुल्लाह हुसैनी ने खिताब करते हुए कहा कि दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम से बच्चों को आरास्ता करना काबिल फ़ख्र बात है, जिसके लिए रियाजुल उलूम के ज़िम्मेदारान, मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात काबिल सताइश हैं। इस मौके पर बानी इदारा ने दोनों मेहमानों की शाल पोशी व गुलपोशी करते हुए दिली मुबारकबाद पेश की और खिताब किया। दाई इजलास मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद क़ादरी हुस्सामी नाजिम इदारा ने सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। हल्के असम्बली कारवान कादरबाग की मुकामी अवाम और मस्जिद इब्राहिम कमेटी के अरकान ने रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन से मुलाकात की। इन्होंने इलाके में पानी की किल्लत और लो प्रेशर की शिकायत की। ये लोग मिराज कॉलोनी में वाक़ मजलिस के दफ्तर पहुंचे, जिस पर रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने फौरी तौर पर मुतालिकीन से फ़ोन पर बात की और माह रमज़ान के पेश नज़र कादरबाग के इलाके में पानी की मौसर सरबराही को यकीनी बनाने और इलाके के मसाजिद में टैंकर्स के जरिए पानी सप्लाई करने की हिदायत दी, जिस पर ओहदेदारों ने पानी की मौसर सरबराही को यकीनी बनाने के इक़दाम करने का रुकन असम्बली को तयक्कुन किया। सप्लाई का भाई जरा पूछ लो रमेश से, आप पर्सनल जाना है तो शबीर भाई को फोन करना, उन्हें बताते पूरा आपको। ऐसा भी रमजान से स्टार्ट होने वाला मंडे से, आप आज या ना तो कल इंस्पेक्शन कर लेगा, कर देना काम।
कारवान से एमआईएम रुकने असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने असम्बली हलके के मोइन होटल हकीमपेट नज़ीर फंक्शन हॉल के करीब सेवरेज लाइन के कामों का मुआयना किया और इन्होंने कामों की अंजामदही के सिलसिले में ओहदेदारों से बातचीत की। इन कामों को जल्द पूरा करने की हिदायत दी। इस मौके पर कौसर मोहिउद्दीन के साथ कारपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, एमआईएम के मुकामी सदर, मजलिस पार्टी के सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर पर इन दिनों सियासी लीडरों और सियासी कारकुनों का तांता बंधा हुआ है। वरंगल के डीसीसीबी चेयरमैन एम रविंदर की क़ियादत में जिले वरंगल के कई कारकुनान कांग्रेस में शामिल हुए। वरंगल डीसीसीबी चेयरमैन और उनकी अहलिया मधुमती कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। हुकूमत के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी ने उनका पार्टी में खैर मकदम किया। पाराकुर्ती और वर्धना पेटा हलकों के कई लीडरान भी गांधी भवन पहुंचे और बाज़ाब्ता तौर पर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। एआईसीसी इंचार्ज दीपादास मुंशी, वर्किंग सदर महेश कुमार गौड़ एमएलसी ने उनका पार्टी में खैर मकदम किया। एमएलए यशस्विनी रेड्डी और केआर नागराजू ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। सर, आज कितने लोगों ने पार्टी ज्वाइन की? साहब सुमार nearly 200 people are joined with them. He is our director of DCCB chairman and MPP Madhulata Garu. They are all their team. They joined in the Congress party. जो कांग्रेस का जो काम देखकर, जो डेवलपमेंट देखकर सब लोग आए हैं। डेफिनेटली हम उनको आदर करते हुए उनको पार्टी में स्वागत कर रहे हैं। नियरली 200 पीपल आर जॉइंड वेरियस पोजीशन से। डीसीसीबी चेयरमैन है, वाइस डीसीसीबी चेयरमैन है और डायरेक्टर्स है। ओल्ड वरंगल डिस्ट्रिक्ट के जितने भी डायरेक्टर्स है पूरे लोग जॉइन हुए। हर भाग से आके पूरे लोग नियरली 200 पीपल्स आर जॉइन टुडे। सो 2024 को लेकर क्या मैसेज? बिल्कुल जो राज बनेगा, कांग्रेस का राज बनेगा, क्योंकि ये राज में सबके लिए अमन बनेगा। किसी को भी हम क्या बोलते कैस्टिज्म से या कम्युनिटी की वजह से नहीं देखेंगे। ये एक बड़ा सा कांग्रेस पार्टी बोले तो बड़ा सा अम्ब्रेला है, वो झंडे के नीचे सबको हम इक्वल से देखेंगे। हैदराबाद मेहदीपट्टनम से कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली अहमद ने दिल्ली में नमाजियों के साथ पुलिस के अफसर की शर्मनाक हरकत की मजम्मत की और अपनी बरहमी जाहिर की। शुबा जाहिर किया कि पुलिस महकमे में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेजी पैदा की जा रही है। का इस्तकबाल है, मैं हूं आपके साथ नदीम। दोस्तों बता दें, कल जिस तरीके से दिल्ली में घटना हुई है, नमाज पढ़ते शख्स को पैर से अब लातों से मारा गया। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं इस हादसे को? ये बहुत शर्मनाक बात है। ये आज़ाद हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ ये पहली मर्तबा हुआ है कि अभी किसी हुकूमत को ये इख्तियार भी नहीं है, या पुलिस को या प्रधानमंत्री को या कोई ऐसे शख्स को किसी के मज़हब के मामले में टोकना या उसमें मुदाखलत करना, ये किसी तरह का उनको पावर्स नहीं दिया गया एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो किताब लिखी थी, हर मज़हब हर तबके का आदमी इक्वल है। प्रजा शांति पार्टी ने आज प्रेस क्लब बशीरबाग में मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। पार्टी सरबराह के पाल ने ऐलान किया है कि वो आने वाले इंतखाबात में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। प्रजा शांति पार्टी के सरबराह के पाल ने इस मौके पर कहा कि जमहूरियत में हिज़्ब इख्तिलाफ जमात का होना जरूरी है, वरना जमहूरी निज़ाम कमजोर हो जाता है। लेकिन आज तमाम सियासी पार्टियों ने अपने आप को बीजेपी के आगे झुका दिया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियर तेलुगु फिल्म एक्टर और सियासतदान बाबू मोहन और दीगर भी मौजूद थे। डबल बेडरूम मकानात में रहने वाले लोगों ने पानी की किल्लत के मसले को लेकर म्युनिसिपल दफ्तर के सामने खाली बर्तन के साथ धरना दिया। इन एहतजाजी मुजाहिरीन ने कहा कि डबल बेडरूम्स में गुज़िश्ता 10 दिनों से पानी नहीं है। अवाम ने यहां पर मौजूद बोरवेल की फौरी दुरुस्तगी अमल में लाते हुए पानी के मसले को हल करने की मांग की। जबकि डबल बेडरूम मकानात सोसाइटी के सदर नंदी रामैया ने टैंकर्स के जरिए पानी सरबराह करने का मुतालबा किया है। इस ज़िमन में म्युनिसिपल चेयरमैन चिन्नम सत्यनारायण और कमिश्नर गौड़ को एक याददाश्त भी पेश की गई। जबकि म्युनिसिपल चेयरमैन ने टैंकर्स के जरिए पानी सरबराह करने का अवाम को तयक़ुन दिया।
जो कल कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने नागामुडुगु लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का दौरा किया। इस मौके पर कांग्रेस लीडर्स ने कहा कि निजाम सागर प्रोजेक्ट के नीचे मंजीरा नदी में 476 करोड़ के फंड से नागामुडुगु लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को रीडिजाइन करते हुए इस प्रोजेक्ट से बराह रास्त बिला ताअत्तुल पानी फराहम किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि वो नागामुडुगु लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की तामीर के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम प्रोजेक्ट को दोबारा डिजाइन करने और किसानों को बगैर किसी नुकसान के पानी देने के लिए पुरज़्म है। कांग्रेस पार्टी कायदीन वो किसानों ने बीआरएस के साबिक रुकन असेंबली हरमंत शिंदे से कहा कि वो नागामुडुगु लिफ्ट स्कीम के ताल्लुक से झूठी मुहिम चलाने से गुरेज करें। रियासत तेलंगाना में कांग्रेस इख्तिदार पर आने के बाद से मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कायदीन अपनी अपनी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। पार्लिमानी चुनाव के पेश नज़र दल बदली का सिलसिला भी जोरों पर है। आदिलाबाद के मारूफ सिविल इंजीनियर फेरोज ने भी कांग्रेस इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी के हाथों पार्टी का खंडवा पहनकर बाज़ाब्ता कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। फेरोज इंजीनियर की कांग्रेस में शमूलियत पर यह कहा जा रहा है कि वो आइंदा बलदी इंतखाबात में वार्ड नंबर 22 से एक ताकतवर उम्मीदवार होंगे और वार्ड में तरक्याती कामों और फलाही खिदमात के लिए आगे रहेंगे। कांग्रेसी कायदीन बोजा रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी, सैयद शाह राशिदुल हक, फिरोज खान, खयूम रजा, निजामुद्दीन और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के हुदूद शाहीन नगर उमर कॉलोनी में नामालूम अफराद ने एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद हमलावर वहां से फरार हुए। कत्ल के इस वाक़े के बाद मुकामी अवाम में खौफ का माहौल देखा गया। मुकामी अवाम ने इसकी इत्तला पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफसीलात हासिल की। महेश्वरम के एसीपी लक्ष्मीकांत रेड्डी ने मीडिया को बताया कि उमर कॉलोनी में वाक़े दरगाह में कत्ल की वारदात पेश आई। मकतूल मोहम्मद उस्मान का ताल्लुक काले पत्थर से है और वो गुज़िश्ता कुछ अरसे से पहाड़ी पुलिस स्टेशन के हुदूद उमर कॉलोनी में रिहाइश पसीर था। कत्ल की वजूहात का इल्म नहीं हो सका। कत्ल में मुलविस अफराद को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। ప్రాంతంలో ఇక్కడ పాడి షరీఫ్ పిఎస్ లిమిట్స్లో ఉమర్ కాలనీ అని చెప్పి ఈ దర్గా హిందూ టెక్ కంపెనీ పక్కన ఉండే దర్గాలో ఒక వ్యక్తిని మర్డర్ చేశారని చెప్పి సమాచారం వచ్చింది. ఆ సమాచారం అందుకున్న వెంటనే మా పిఎస్ సిబ్బంది, ఎస్ఐ గారు మరియు టీం అందరు కూడా రావడం జరిగింది. వచ్చి ఇక్కడ క్లూస్ అన్ని కూడా ప్రిజర్వ్ చేసి క్లూస్ టీం తర్వాత డాగ్ స్క్వాడ్ కూడా పిలిపించడం జరిగింది. और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। हैदराबाद में बैरामलगुड़ा के सेकंड लेवल फ्लाईओवर का चीफ मिनिस्टर के हाथों इफ्तिताह। एलबी नगर खित्ते में ट्रैफिक के मसाइल को कम करने के मंसूबे पर काम जारी। तेलंगाना आरटीसी मुलाजिमीन के लिए खुशखबरी, हुकूमत ने पे रिवीजन का कर दिया ऐलान। याकूतपुरा हल्के में सदर मजलिस के हाथों मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज। शहरियों की सहूलत के मंसूबों को जारी रखने बैरिस्टर ओवैसी का अज़्म। जनगांव में एक रोजा हज तरबियती कैंप का एहतमाम। जिले हज सोसाइटी ने सफर मुकद्दस पर जाने वालों को दिए मुफीद मशवरे। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।